Okay, so yesterday we had started, in the previous lecture we had started the decision making and the branching. So we say some of the questions here. What is the decision making? So we have previously seen the decision making is nothing but the situation where we have to take the decision in which direction we have to go. So for taking the decision, we have four different types of the statement: if statement, switch statement, conditional operator statement, and the go to statement. So when we consider the if statement, so that can be used to specify the condition along with the if. If is nothing but the keyword. So along with the if we have to specify the condition. So if in bracket we have to write down the condition, and if the condition is going to be true, so after this if block the condition is that whatever the condition is specified, that specifies the true condition, and whatever we write in the else, that is also called as the false condition. For representation of this we have to use this diamond shape box. So from this entry part we have to start the, or we have to write the different code which we have yesterday seen. We have seen the program for finding the age greater than the 50. So initially we start and then initialize the age as an integer, then accept the age of the person. After that, here we check the condition whether the age of the student candidate or the person is greater than 50. If this is, we are going to we can go with the two direction, either with the true condition or with the false condition. If it is true, then we get this type of result. If it is false, we get this type of result. But ultimately after getting the true or the false, we will go to the next step, that is to the stop. So this is nothing but the flowchart. This is the algorithm which we write yesterday, and this is the program. So we can write with the simple if statement, if else statement, nested if else, and else if ladder. We'll see one by one. So this type of the flow yesterday we had created. This is the entry point. Here we check for the condition. We have tried is I less than 10 or is age greater than 50 or less than 50. If false, we have to go to this direction. If true, we have to go to this direction, and we have to go with the next direction. This is a syntax. If test condition, here we have to write down the condition. If this condition eval to be true, then this will execute this true block statement. If the condition is false, then this block is going to be executed. So this is the entire uh, the flow of the if else. This is entry test condition. We can go for either for the true or for the false. If true, if this is true, so this will be executed, this true side will be executed. So if it is true, so it will move with this direction. If it falls, it will move with this direction. So ultimately, if you are going with the true, or you are going with the false, you are going to the common terminal, which means that we will have only one start point and we will have only one end point, or we have only one stop. Only single start and single stop in every flowchart, in every algorithm. If we have a nested if else, in that condition we have to today we will see the nested if else condition. See here we are getting the first condition, second. Okay, so see, this is the scope of this if block, and this will close. We'll check it. Firstly, this is the if block, inner if block. Okay? And this else block belongs to the inner block. This if and this else are interlinked. This if and this else is interlinked. Means every if we want to write, we can write if and else. If you are writing one more if, one more else. If you are writing one more if, no problem, we will write one more else. So inner will close with the inner else part. This inner will close with the inner else part, and this outer will close with the outer else part. So here this is nothing but the block of the if statement. Whatever we are writing in the curly brace is nothing but the block.
किसका ब्लॉक है? दिस इज द ब्लॉक ऑफ द एल्स ब्लॉक. यस. इसके साथ एल्स लिखना कंपल्सरी है? नहीं, no need, we will come to that point. See how this flow will move of this program. This file is already shared on to your group. So here we are getting two if blocks. First one is this, second one is this. So this is a second if block and this is a first else block. So this is a starting point. Here initially we have to check for the first condition. This is nothing but the first if block. First if block. It's okay. If the condition is going to be false, then it will move out. If the condition is going to be true, it will check for the second block. We'll check one by one. मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ अभी. देखिए. So yesterday we had seen two topics. Which two topics yesterday we had seen? Yes, anyone? First one is the simple if statement, and second one is the if else. Now the question comes that is else is required with if every if statement. If is going to evaluate for only true condition. If we have only one condition, in that case it's okay that we are writing or we are specifying the particular block. If we have a multiple conditions, then what should we do? That's the question comes to the mind. So if we have a multiple conditions, in that condition we must specify the else block. If we are not specifying the else block, we will get only the true block result, we will not get the false block. Just like here, this is the program which we made yesterday in the previous lecture. This here we are going to find out the age of the person. If the particular, if in the if block we had written age greater than 50, then this printf your age is above 50 years will be going to be displayed. But if we are not writing the else block, then what will be the result? We will close it. Compile it. Okay, no error. Done. Suppose I am inputting the value 56. You will get the result as your age is above 56. But what happen if we are inputting the value less than 50? That is suppose 4 years. We will not get any type of the value. So to get this type of the value, we must specify the else block. And as a good practice, you must specify the else block along with the if block. Yesterday I given you the program for finding the whether the number is positive or negative. The number is positive, comma, negative or 0. So this program can be done with the help of the simple if, only simple if statement, or with the help of if else block. Same program can be done in the multiple ways. So we'll check it. So which header file I have to include? Yes, anyone? Include stdio.h. stdio.h. Next, what we have to do? Next step, we have to start with the main. Okay, curly brace, it's okay. Now question पढ़ो. Number is whether the number is positive, negative or the 0. So we require only a single int number. So int num, then clr to clear the screen. Okay, next step is to printf. What we have to write in the printf? Enter the number to find a number is positive, comma, negative or
0, दैट्स इट। प्रिंटफ में लिखते हो प्रॉपरली पूरा लिखे, ताकि कैसे हो कि आगे वाला जो भी रीड करता है दैट पर्टिकुलर पर्सन विल इजी आइडेंटिफाई व्हाट वी हैव टू एंटर। CANF। एनएफ में क्या लिखोगे? यस, अब पहले क्या करना है, वी हैव टू एक्सेप्ट द नंबर। कौन सा है? नम। नम मतलब कि कौन सा? इंटीजर है। इंटीजर मतलब वी हैव टू राइट आउट द परसेंट डी, वी हैव टू राइट द एम्परसेंट ऑफ नम। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वी हैड एक्सेप्टेड द नंबर, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, accept the number, then we have to perform the calculation. So we will first do with the simple if statement. So here we are getting the three different condition, whether the number is okay, this is our scale, this is 0, mark it as okay, this is 0, this is 1 2 3 4 and dot dot dot, this is -1 -2 -3 dot dot dot. So we have to check whether the number is negative, positive or the 0. मतलब सपोज इफ द नंबर विच इज एंटर्ड इज ग्रेटर देन 0, क्या होगा? नंबर इज, जल्दी बोलिए। इफ नंबर ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नंबर विल बी पॉजिटिव। चलो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ नंबर लेस देन 0 क्या होगा? नेगेटिव। बराबर। तीसरी कंडीशन, इफ नम इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है? नंबर एंटर नंबर इज 0। यहाँ पर हमारे पास में तीनों कंडीशन आ गई। वी विल राइट ऑल दिस कंडीशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर इफ एल्स नहीं लिखते हुए भी वी आर कवरिंग ऑल द कंडीशन, जस्ट लाइक इफ नम ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट एफ क्या लिखो यहाँ बताइए? नंबर इज पॉजिटिव कि नेगेटिव कि क्या लिखो? जल्दी। नंबर इज पॉजिटिव। ठीक। नेक्स्ट, एक कंडीशन हो गई हमारी, खत्म हो गई। चलो नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। इफ नम लेस देन 0, लेस देन 0 है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तीसरा, नंबर इक्वल्स टू 0, नंबर इज 0, इट्स ओके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं पूरे क्वेश्चंस को निकालता हूँ। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। फन कर देते हैं हम। कंपाइल, नंबर एंटर करते हैं, पहले पॉजिटिव नंबर एंटर करते हैं, सो विल गेट दी नंबर इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम वी एंटर दी 0, नंबर इज 0। चेक फॉर ऑल टाइप ऑफ दी वैल्यूज। अब जो भी हमने एंटर करना है हमको चेक करते हैं, नंबर इज नेगेटिव और दी 0, मतलब कि आंसर हमारा सब प्रॉपर आ रहा है, बराबर। और आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि व्हेनेवर वी आर राइटिंग द इफ ब्लॉक वी हैव टू स्पेसिफाई द कर्ली ब्रेस। आप बोलोगे कि सर आपने इसके पहले अभी कर्ली ब्रेस स्पेसिफाई नहीं करते हुए बराबर आंसर कैसे आया? ठीक, देखिए। 7 प्रेस करता हूँ मैं, क्या हुआ देखिए, पहले मेन पर गया, 7, उसके बाद कहाँ गया? CLR पर गया, देन इट गोज टू दी एंटर नंबर टू फाइंड अ नंबर इज नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पर
F7 प्रेस किया, यहाँ पर स्कैन। अब देखिए ट्रेसिंग किसको कहते हैं या क्या होता है मैं भी दिखाता हूँ आपको। इसको एग्जीक्यूट, इसको स्टॉप कर लेते पहले हम। नंबर बराबर देखना, थोड़ा सा क्लियरली देखिए। द रन ऑप्शन वी हैव F7 ऑप्शन, ये क्या करता है कि एक एक स्टेप को कैसे एग्जीक्यूट करता है इंटरनली, यहाँ पर ये शो करता है। कौन? F7 की बटन से। अगर कहीं गलती हो रही है, कैसे हो रही है, दिस कैन बी इजीली आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द ट्रेसिंग। अब यहाँ पर इनिशियली क्या हो रहा है कि द प्रोग्राम विल स्टार्ट विद द मेन पेज करने के बाद फिर से F7 की बटन दबाएंगे। सो इनिशियली जो प्रोग्राम, जो हमारा कर्सर था या जो ट्रेसिंग थी, वो यहाँ पर मेन पर रुका। मेन पर इसलिए रुका बिकॉज दिस इज नथिंग बट द फंक्शन whose value is already, means a function is nothing but a block of statement which is going to be execute when it is called, and it's best practice that a function must return a value। opening closing round bracket है, इसका मतलब है this is nothing but a function। so we had written main opening closing round bracket, इसीलिए ट्रेसिंग जब हुई स्टार्टिंग में तो वहां पर रुका था। जब भी ट्रेसिंग होगी एंड व्हेन इट गेट द फंक्शन इट विल स्टॉप। द सेकंड स्टेप इट स्टॉप, दिस इज नथिंग एट द तो सी एल आर एस सी आर पर रुका। इसके बाद जैसे जैसे आप F7 प्रेस करोगे, इसके बाद देखिए प्रिंट एफ पर गया। जब प्रिंट एफ पर गया, जैसे मैं यहाँ पर आकर यूजर स्क्रीन चेक करता हूँ तो मुझे स्क्रीन पर मिलेगा एंटर नंबर टू फाइंड नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों मिला? क्योंकि देखिए जब प्रिंट एफ पर जाने के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्प्ले हो चुकी है स्क्रीन पर। हमको इसलिए दिखी नहीं बिकॉज की स्क्रीन अभी उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, वी हैव अ स्कैन एफ। यहाँ पर ये क्या बोलेगा कि एंटर द नंबर। सो जैसे यहाँ पर आप F7 की बटन प्रेस करोगे वी गेट द स्क्रीन टू एंटर द नंबर। अब मैंने एंटर किया 0। अब देखिए फर्स्ट क्या हो रहा है कि इफ नम ग्रेटर देन 0, मतलब दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज इफ नम लेस देन 0 और थर्ड कंडीशन है इन नम इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फॉल्स हो चुकी है। तो F7 प्रेस करने के बाद देखिए ये इफ ब्लॉक जो है ये स्कीप होकर नेक्स्ट पर जाएगा। देखिए गया, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ बिकॉज दिस इफ नम, ये जो लेस है या पहले जो ग्रेटर था, यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है कि वेदर द एंटर्ड वैल्यू इज मैचेस विद द कंडीशन और नॉट। अब यहाँ पर हमने डाला है कि नम ग्रेटर लेस देन 0, यहाँ पर भी कंडीशन फेल हो रही है। ये जंप करेगा टू द नेक्स्ट कंडीशन दैट इज इफ नम इक्वल्स टू 0। अब जब यहाँ पर आएगा इट विल चेक नम इज इक्वल्स टू 0। नम की वैल्यू हमने डाली है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 बराबर है। अब ये जाएगा प्रिंट एफ पर, देखिए गया। ठीक है, प्रिंट एफ पर गया। मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हम रन पर जाते हैं, ये सिर्फ ट्रेसिंग में मिलेगा, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर उसको प्रिंट होने का अभी कि वहां पर अभी फिलहाल है। जैसे F7 प्रेस करेंगे यहाँ से निकल जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन पर गया। ठीक, अब चेक करते हैं, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक, F7 से क्या हो रहा है, ट्रेसिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ पर जा रहा है, कैसे जा रहा है, चेक कर सकते हैं हम। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो गेट सी एस से भी ट्रेस, गेट सी एस से तो रुक जाता है, फिर आपने यहाँ पर गेट सी एस लिखा है इसलिए वो तो रुकने वाला है। तो एक काम करते हैं, इसको हम रोक देते हैं। ठीक, से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखना, यस देखिए मेन पर गया। मेन इज अ फंक्शन, वहां पर रुकेगा ही हमेशा, जहां जहां पर फंक्शन है वहां पर हमेशा रुकेगा ही। उसके बाद गया सी एल आर एस सी आर। देखिए सी एल आर एस सी आर। उसके बाद प्रिंट एफ पर गया, उसके बाद स्कैन एफ पर जाएगा, उसके बाद एफ पर जाएगा। यहाँ पर वी हैव टू एंटर द नंबर, सो 0 नंबर इज एंटर्ड। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। उसके बाद थर्ड इफ नम इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन इज ट्रू। यहाँ गया, यहाँ पर क्या मिला आपको, प्रिंट एफ नम इज 0 आउटपुट मिलेगा। अब देखिए गेट सी एच नहीं मिलता हमने, बट स्टिल वी कैन चेक द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ द यूजर स्क्रीन एंड नंबर इज 0। ट्रेसिंग कब यूज करते हैं हम, जब हमको कभी कंफ्यूजन हो कि नहीं इसका कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ पर जंप कर रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं होता है। इन दैट केस वी कैन यूज द ट्रेसिंग। अब सवाल ये था कि सर आपने एक जगह पर यहाँ पर क्या किया कि इफ के बाद करली ब्रेस स्पेसिफाई किया और हियर यू डोंट स्पेसिफाई द करली ब्रेस। क्या होता है ध्यान से देखना कि इन all of this if block we are getting only a single statement in the if block।
मतलब इफ नम ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, प्रिंट एफ ओनली वन स्टेटमेंट। इफ num less than 0 we had written the printf this statement. उसके बाद if num is equals to 0 printf num is 0. So if we have to execute only a single statement in the if block, then there is no need to write the curly brace. लेकिन उसकी आदत डालना, नहीं लिखा तो भी चलता, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं कि इफ वी हैव ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट विच इज टू बी एग्जीक्यूट इन द इफ ब्लॉक, in that case if you are not writing the curly brace, then there is no need, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो देन देयर इज नो नीड टू राइट डाउन दी करली ब्रेस। बाय डिफॉल्ट इसका स्कोप एक लाइन का ही होता है, दो लाइन का नहीं होता है। क्या कहा मैंने, बाय डिफॉल्ट इसका स्कोप एक लाइन का होता है। अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ, देखो क्या कहा मैंने, बाय डिफॉल्ट स्कोप, अभी एक वर्डिंग किया, ये ध्यान में रखना है, भूलना मत कभी। ठीक, सो अगर पहली कंडीशन में क्या लिखा है हमने, इफ नम ग्रेटर देन जीरो तो इट विल गो एंड एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक। ये जो करली ब्रेस दिख रहा है, ये करली ब्रेस एग्जीक्यूट होगा। सेकंड जब यहाँ पर आएगा नम लेस देन जीरो, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, बाय डिफॉल्ट मैंने कहा इसका स्कोप एक लाइन का होता है, तो ये प्रिंटफ के बाद ये जंप करेगा डायरेक्टली यहाँ पर, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। सो इफ दिस इफ नम लेस देन जीरो इस कंडीशन इज फॉल्स, सो इट विल जंप टू द सेकेंड लाइन। सेकेंड मतलब कौन सी, प्रिंट एफ बी सी ए। ठीक, यहाँ पर जंप करेगा क्योंकि हमने करली ब्रेस यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किए। देखो, वी विल डू द कंपाइलेशन। run, we enter the zero। देखिए, we get the BCA ऑब्लिक BSc, ये मिला हमको। क्यों मिला, बिकॉज उसका स्कोप जो होता है वो एक लाइन का होता है। अब ये स्कोप को अगर मुझे यहाँ से निकालना है, मतलब कि मल्टीपल लाइंस जब हमारे पास में होते हैं, अब देखिए जब मैं करली ब्रेस दे दूंगा तो क्या होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी द एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट विच वी आर राइटिंग इन दिस करली ब्रेसेस। ये करली ब्रेस में जो जो लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए, जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने करली ब्रेस दे दिए तो इसका स्कोप बढ़ गया। अभी ये स्कोप मतलब कि इसमें 1000 लाइन लिखिए, 10,000 लाइन लिखिए, 1 लाख लाइन लिखिए, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका स्कोप स्पेसिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ द करली ब्रेस। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है, एनी डाउट? नो सर। ये हो गया विद द हेल्प ऑफ द सिंगल सिंपल इफ स्टेटमेंट। चलो इसको चेंज करते हैं हम, विद द हेल्प वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ द इफ एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा, इफ कंडीशन डाल दी हमने, हियर वी हैव टू राइट एल्स इफ, नेस्टेड इफ। ओके, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। In this program we are getting three conditions. This is 0, this is positive, and this is negative. So we will specify 1 in the if block, and this will be, we will specify in the if else block. नेगेटिव आ जाएगा इफ में, पॉजिटिव आ जाएगा इफ में, और 0 आ जाएगा हमारे पास में एल्स में। ठीक, जो मैंने कल आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में डाला था मैंने। सो इफ नम इज दिस, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, with the help of this, how many condition we are getting, we are getting 3 conditions, first one for the positive, second for the negative, and third for the 0. We can solve it by with multiple ways. First one is we can use a 3 if blocks. How many if blocks? 3 if block we can use, just like we have seen yesterday, just before program.
Next is we can use one single if for positive condition, one if for the negative condition, and else part for the zero. So here we can check if this, second if यहाँ पर आ गया और इसको डाल देते हैं हम else पर. Ultimately what we are covering all the three conditions here. We'll check it. Done. सबसे पहले हम डालते हैं पॉजिटिव नंबर, so we'll get the positive number. Number is 0. देखो गड़बड़ हो रही है, थोड़ा ध्यान देना. What we are entering 89. ऐसा कुछ आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है. So if we are entering the 0, we will get the result 0. It's okay. Now if we are entering the value as -1, we get the negative or the 0. But when we are entering the positive value, we get the 2 result. क्यों हो रहे देखिए, इफ कंडीशन चेक होने के बाद, मतलब कि थोड़ा सा लॉजिकल है, प्रॉपर ध्यान देना एक बार. कहता हूँ देखिए, ये जो इफ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ पर खत्म हो गया. ओके. उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे पास में इफ ब्लॉक में आ रहे हैं, उसके बाद ये जा रहा है एल्स पार्ट पर. तो क्या हो रहा है देखिए, जैसे ये एल्स, ये सपोज फॉल्स हो गया, बराबर. तो ये क्या करेगा, दिस विल मूव टू दी नेक्स्ट इफ ब्लॉक. एक ध्यान में रखना हमेशा कि फ्रॉम दिस इफ एंड एल्स एक हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही. आइदर दिस इफ विल एग्जीक्यूट और एल्स विल एग्जीक्यूट. इसलिए मैंने कल आपको ये ऑप्शन दिया था कि आपको चेक कीजिए कि फर्स्ट यू हैव टू चेक विद द इफ ब्लॉक एंड सेकेंड वी हैव टू चेक विद, यू हैव टू डू विद द एल्स ब्लॉक टू चेक इसका रिजल्ट क्या होता है. ध्यान से देखिए कि ये जो इफ ब्लॉक है पहले वाला, इसमें क्या हो रहा है प्रॉपर से फिर से देखिए बराबर. पहला वाला जो इफ ब्लॉक है हमारे पास में, ये इसमें एल्स नहीं है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ फॉल्स होता है ठीक है, कोई बात नहीं है. लेकिन ये जो इफ ब्लॉक सेकंड वाला जो हमको मिल रहा है, उसमें आपको एक दिमाग में रखना है कि एक तो इफ एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा ही. तो ये एग्जीक्यूट अगर नहीं हो रहा है तो एल्स तो होना ही है. इसीलिए जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स आ रही है, मतलब कि सपोज वी आर एंटर द नंबर इज 5, नंबर इज पॉजिटिव, इट्स ओके. उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इफ का, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा लेकिन एल्स होगा. व्हाई? बिकॉज फ्रॉम द इफ और एल्स ओनली वन कंडीशन कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम. तो ये हमको वहां पर ध्यान रखना है हमेशा. अब इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास में, हम क्या करते हैं इसको, एक मिनट. देखिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं हम, इसको हम कर देते हैं एल्स, ई एल एस ई एक स्पेस. अब देखिए ये चेंज हो गया. हाउ इट इज गोइंग टू बी चेंज, एक मिनट मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको. मैंने क्या लिखा अभी यहाँ पर, वी हैव रिटर्न द एल्स इफ. ठीक.
अब एल्स इफ लिखने से यहाँ पर क्या हो गया कि 3 पार्ट आ गए, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, और ये आ गया हमारे पास में थर्ड। फर्स्ट पार्ट इज इफ नम ग्रेटर देन 0 है तो ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाएगा एल्स पर, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद जाएगा एल्स पर, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आई टोल्ड बिफोर दिस, it will execute only one part, either if or else. Now you can say that suppose this condition is going to be false, तो ये जाएगा, ये false हो गया, तो हमको तो पता है कि अगर if false होता है तो ये कहाँ जाएगा? else पर जाएगा, तो ये जाएगा ये else पर। else पर जाने के बाद ये जाएगा आगे और चेक करेगा if num less than 0, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये else पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। and if this condition is going to be false then it will jump to the next। आप बोलोगे कि सर ये तो else पहले आ चुका है, अब ये else कहाँ से आ गया? मतलब ये इसको फिर कैसे समझेगा? क्योंकि अब else के बाद हमने क्या एग्जीक्यूट किया? वी हैड एग्जीक्यूट दिस if ब्लॉक। else के बाद क्या एग्जीक्यूट किया हमने? if। तो else तो निकल गया हमारे से, तो ये if के बाद क्या चेक करेगा? इट विल चेक फॉर द else पार्ट, और यहाँ पर आके इसको ये एग्जीक्यूट करेगा। वी विल चेक फॉर द रिजल्ट। इसको हम चेक करते हैं, कंपाइल, run। Suppose we are initially 12, number is positive, it's okay, and suppose 0, number is 0, यहाँ पर हमने क्या किया? मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पर एक साथ लिखा हमने। पहले हमने क्या किया था? फर्स्ट वन इज द सिंपल इफ, सेकंड वन इज द इफ एल्स। अभी क्या बनाया हमने? इफ एल्स स्टेटमेंट का वहां पर यूज किया हमने। ऐसे होता है, और लास्ट में इसका आता है हमारे पास में एल्स, एल्स इफ। मल्टीपल इससे होते हैं, एक होता है हमारे पास में जिसमें हम मल्टीपल इफ्स लिखते हैं, जो हमने पहले कहा था, इसको हम नेस्टेड भी कहते हैं। अभी ये जो लिखा है इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? इज एनीवन इज हैविंग डाउट? यस। if num greater than 0, else if num less than 0, next one is the else, here we have written the else part। yes, any doubt? any doubt? नो सर। आगे चलते हैं हम। न्यू प्रोग्राम, to find the number is odd or even। ठीक है, चलो हेडर फाइल बोलिए। हैशटैग इंक्लूड std वो उसको टैग नहीं बोलते, वो हमारा वो टैग नहीं है। हैश इंक्लूड क्या लिखेंगे? stdio.h io.h। stdio.h। चलो मेन प्रोग्राम क्या लिखा है हमने? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द एंटर नंबर इज ऑड और इवन। सो एक ही नंबर एंटर करेंगे, सो इंट नम
printf सर CLR SCR enter number to find and the number is even or odd. कोई बताएगा even क्या होता है odd क्या होता है? Yes, anyone? Yes, anyone? even numbers 2 4 6 1 3 7 odd numbers. हाँ बोलिए क्या करेंगे? चलो 10 तक मैंने नंबर लिख दिया. सो ठीक है 10 तक नंबर लिख दिया मैंने. अब इसमें देखिए 1 3 7 ये नंबर्स कुछ अलग है yes sir. क्या अलग है कोई बताएगा? even odd numbers. ऊपर के ऑड नंबर है, नीचे के ऊपर के odd से नीचे के even. क्यों ऐसा हो रहा है ये? सर ऑड नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ. किसने बताया ऐसा? जो टू के टेबल में आते हैं वो सब इवन नंबर. जो नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड होते हैं उसे आप इवन Yes. नंबर कहते हैं. वही मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि वो ये लॉजिक ऐसे बनना है. अब देखिए जो ऊपर में जो लिखे हैं ना हमने, these numbers are not divisible by 2 and these numbers are divisible by 2. समझा? अगर नंबर टोटली डिविजिबल बाय 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑड कहेंगे कि इवन कहेंगे? इवन. इवन. मतलब ये जो हमने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? ये ऊपर के क्या हो गए फिर? ऑड नंबर. ऑड. Odd. ऑड. ठीक, ये ध्यान में आ गया अभी? 1 3 5 7 9 ये इतने नहीं होते, उसको आगे लेके जाओ आप. 11. अब 2 4 6 8 10 12 14 16 जो होंगे वो हमारे पास में एज ए इवन नंबर हम कंसिडर करेंगे. अब सवाल आता है कि अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सपोज वी हैड एक्सेप्टेड द वैल्यू इन द नम. यहाँ चेक करना पड़ेगा इफ नम. बोलिए क्या करेंगे? नम मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. यस आता हूँ मैं. ठीक, सो वी टेक नंबर एज 10. नो डाउट दोनों को हमको क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड इट बाय द 2. ठीक, और एक नंबर में साइमल्टेनियसली यहाँ ले लेता हूँ 13. इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ में. तो इसको जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट एज 5. यहाँ पर आ जाएगा 10 और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0. इज नथिंग बट द रिमाइंडर. ये हमने इसके पहले करके देखा है, आप लोग को मैंने बताया था. ओके, सो ये
5 इंटू 2 10 आ जाएगा और यहाँ पर इसका रिजल्ट है हमारे पास में। ये जब डिवाइड करोगे तो यहाँ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 12 और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में 1। ठीक है, इस ये समझा। हमको क्या करना है, सपोज ध्यान से देखना, यहाँ लिखता हूँ, इफ तो लिखना पड़ेगा हमको, इफ num divided by 2 equals to 0, ये लिखा चलेगा। चेक करो, अभी आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या लिखने से क्या आंसर मिलेगा हमको। यस, नो सर। ये लिखा तो क्या होगा। चलो एक काम करो, ट्राई करके तो देखते हैं। नहीं, हम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ये डिवीजन से और मॉड का जो डिफरेंस है ना, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है हमको। इफ नम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। आपने कहा सर आपने रिजल्ट 0 आना चाहिए, चलो चेक तो कर लेते क्या होता है, चलो चेक कर लेते हैं। तो printf, देखो जब हमको डाउट होता है कि क्या करना चाहिए सर, क्या होगा इसका रिजल्ट, तो सिंपल क्या कीजिए कि जब कैलकुलेशन करते हैं हम इसको यहाँ पर ट्रेस करते हैं हम। ट्रेस मतलब कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारी नम की वैल्यू बाहर आ रही है, तो वी विल चेक वेदर व्हाट द वैल्यू ऑफ नम वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस, हम चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द %d, और यहाँ लिखते हैं हम नम। एक चेक करके देखते हैं क्या आता है हमको आंसर। अब सपोज हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 15, तो ये बाहर निकल गया डायरेक्टली, यहाँ से अंदर नहीं गया। और सपोज हम वैल्यू डालते हैं 10, तब भी हमको आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला होगा आंसर, क्योंकि डिवाइड करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, अब देखो इसको मैं 0 डालता हूँ, अब देखो क्या मिलेगा। ये नम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये वैल्यू अगर हमको 0 मिल रही है तो हमको क्या चेक करना है, वी हैव टू चेक फॉर दिस रिमाइंडर वैल्यू। डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, और हमको क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंपल चेंज करना है %। ठीक, अब यहाँ पर इसका काम नहीं है हमको। printf लिख देता मैं 1, और देखो दो ही कंडीशन हमारे पास में, इट विल बी आइदर ऑड और इट विल बी आइदर इवन। तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक, कंपाइल करते हैं, रन। पहले डाल दिया मैंने 12, इवन आ गया। कंपाइल करते हैं और डाल दिया मैंने 3, रिजल्ट इज ऑड। क्या हो रहा है, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि वेदर इफ नम मॉड ऑफ 2, ये नम आ गया हमारे पास में, दिस 10 इज नथिंग बट द नम। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये जो 13 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में, और ये 10 जो है, दिस इज नथिंग बट द नम। इसको क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड बाय 2। ठीक, यहाँ पर 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट वी वांट द रिजल्ट एज 0। रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारे पास में, 0 होना चाहिए, टू आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज इवन और ऑड।
तो इसके लिए हमने क्या किया, वी डिड दी मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक, यहाँ पर हमने किया नम मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 अगर है तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे एंटर नंबर इज इवन, और यहाँ पर लिखेंगे एंटर नंबर इज ऑड। ठीक, इसमें किसी को डाउट है? ये आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखना है। अलोंग विद दैट आप लोग को इसका अल्गो बनाना है और फ्लो चार्ट भी बनाना है, वैसे ही जो इसके पहले बनाया था उसका अल्गो फ्लो चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, बनाओ। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट टुमारो।